Hello student, this is Ripudaman Saurabh Mishra, TGT Math, Odisha Adarsh Vidyalaya, Kalampur. So in this class, we are going to learn how to find out the area of a combined figure. So up to this class, you people have already learned how to find out the area of a particular shape separately. It means you have already known how to find out the area of a circle, semicircle, rectangle, square, and other type of plane figure. But in this class, we will learn how to find out the area of a figure which is formed by combine two or more different shapes. So it will better, in my point of view, or I believe that it will be easier to understand the concept by going through some specific examples or by solving some problems on this particular concept. Let me give you a set. Okay. Or so we have to find out the area of these two shapes. Now you can see that this is a shape and this is another shape. And this is neither a rectangle nor a circle nor a semicircle or not even a square. So first thing you have to find out by combination of which figure these shapes are being made. So let me join this line. First I have to find out this area of this figure. Now you can find that this is the combination of what? Square plus, and this is a what? Equilateral triangle. अभी ये फिगर पहली चीज हमें क्या करना है, पहली चीज ये देखना है कि कोई भी अगर शेप का हम एरिया निकाल रहे हैं तो हमें ये पता लगाना है कि वो जो शेप है कौन कौन सा फिगर का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. और यहाँ पे हम जब एडी को ज्वाइन किए तो हमें मालूम चला कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड व्हाट इक्विलैटरल ट्रायंगल है. तो मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है. सो एरिया ऑफ ए बी सी डी ई इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 14 देंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलता. यहाँ पे 14 नहीं करता हूं मैं. यहाँ पे देखो हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्क्वायर है ये रेक्टेंगल. यहाँ पे एक तो देख के पता चलता है फिगर को, हम पता कर सकते हैं. दूसरी चीज यहाँ पे तुम्हें कुछ डाटा दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे 14 दे दिया, यहाँ पे 14 है. अभी ये 14 है तो ये 14 है और ये भी 14 है तो ऑटोमेटिकली ये भी कितना होगा, 14 ही होगा. या फिर यहाँ पे तुम्हें 90 डिग्री दे दिया होगा, यहाँ पे 90 डिग्री दे दिया, तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि ये स्क्वायर है. और ऊपर हम देखेंगे कि ये 14 है, ये 14 है, अभी ये इसके साथ इक्वल है तो ये भी हो गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ एबीसीडी इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ एबीसीडी प्लस एरिया ऑफ एईडी. अच्छा, एरिया ऑफ एबीसीडी मतलब एबीसीडी स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, फॉर्मूला क्या है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ द साइड प्लस एरिया ऑफ ए मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 14 का स्क्वायर. सो दिस इज 196 प्लस दिस इज ऑल्सो 6 √3/4. सो आई कैन टेक 196 कॉमन जाएगा तो 1 प्लस 3/4. सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 196 4 प्लस √3/4. 4 कैंसिल होगा, ये हो गया 49 इंटू
4 plus root 3 cm square. So by finding the area of the square and the area of equilateral triangle, I can found the area of this shape. Now just come to this figure. In this case, you can see that this line goes straight up to this point and this line goes straight up to this point. So first thing again in this figure, I have to find out or figure out the shape which are combined to give me this particular figure. So कौन कौन सा शेप यहाँ पे कौन कौन सा फिगर मिलने के बाद ये फिगर मिला है, ये मुझे पहले पता करना है. तो मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा. अभी ये लाइन ड्रॉ कर देने से मुझे पता चला कि ये कौन सा फिगर है. दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज ए सेमी सर्कल. अगर ये 14 cm है तो ये कितना है, ये भी 14 cm है. हियर तो यहाँ पे जो स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 14 cm. देन अच्छा, डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल, ये क्या है, सेमी सर्किल है. तो ये सेमी सर्किल क्या है, डायमीटर है. डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू 14 cm. सो रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच, 14/2 is equal to 7 cm. Now, how can I find out the area of this figure? If I find out the area of this square and I find out the area of this semicircle, then I just have to add this area to find out the area of this whole figure. So, my first duty is to, or the first thing that I have to do is to find out the area of the square. Here area of the square is equal to side square. हमें पता है square of the side is area of the square. So 14 का square is equal to 196. Now I have already got this area. Now I have to find out the area of the semicircle. So area of semicircle is equal to area of circle is pi r square. So area of semicircle is half into pi r square. Half into 22/7 into 7 into 7. Cancel. This is 77. This is cm square. This is cm square. So area of the figure is equal to area of what? Area of square plus area of circle. So I can write area of square is 196. I have got 196. Area of semicircle. This is semicircle is plus 77. So 273 cm square. This is how we can find out the area of this figure. Got it? Now we'll solve a problem of your book so that we can get some deep knowledge about this concept. Okay. So here is the problem, or here is the example of your book. We have to find out the area of this shaded region. And what we can see here, we can see there is a square and there are 4 circles inside the square. Square के अंदर क्या है, 4 सर्किल है. इसी तरह से वो सर्किल को वहाँ पे सेट किया गया है. हर एक सर्किल दूसरे को यहाँ पे हर किसी के साथ एक दूसरे के साथ टच हुए हैं. अच्छा, अभी देखो मुझे यहाँ से
ये जो शेडेड रीजन का एरिया कैसे मिलेगा? अगर मैं स्क्वायर के एरिया से, अगर तुम गौर से नोटिस करोगे तो पता चलेगा, ये स्क्वायर के एरिया से अगर मैं ये पार्ट का जो एरिया है इसको अगर मैं निकाल फेंकता हूं तो बाकी जो बचेगा वो है मेरा शेडेड रीजन। तो पहला काम क्या है? पहला काम है मुझे स्क्वायर का जो है एरिया वो निकालना है, उसके बाद ये जो सर्किल का एरिया है वो निकालना है। और याद रखो ये जो सर्किल दिया है, द सर्किल गिवन हियर, ऑल आर ऑफ इक्वल साइड। सो आफ्टर फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए पर्टिकुलर सर्किल, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ 4, or I just have to 4 times subtract the 4 times of area of a circle from the square to find out the area of this shaded region. तो एक स्क्वायर का एरिया निकाल लूंगा, फिर मैं सर्किल का एरिया निकाल दूंगा, और क्योंकि सारा का सारा सर्किल सेम साइज का है तो एक सर्किल का निकाल कर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये टोटल एरिया पाने के लिए। तो जो मिलेगा उसको मैं स्क्वायर से माइनस कर लूंगा। सो यहाँ पे अगर स्क्वायर का साइड 14 है तो इमेजिन करो अगर यहाँ पे एक लाइन होता 20 से जाता तो उसका भी साइज 14 होता। तो अगर ये लाइन 14 है तो ये कितना होगा? सेम साइज का है, मतलब इसका ये डायमीटर है। तो डायमीटर ऑफ ईच सर्कल इज हाउ मच? 14/2 7 cm। क्यों? क्योंकि दो सर्कल का डायमीटर मिलने के बाद 14 होता है। ये अगर 14 है तो ये भी 14 है, दो सर्कल का डायमीटर मिलने के बाद 14 होता है, तो एक सर्कल का डायमीटर होगा 7 cm। सो रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा? 7/2। तो यहाँ पे r = 7/2 cm। सो फर्स्ट मुझे क्या करना है? एरिया ऑफ स्क्वायर is equal to साइड स्क्वायर, और मैं यहाँ पे साइड कितना है? 14 है, दिस इज 196 cm स्क्वायर। एरिया ऑफ ईच सर्कल, अभी देखो स्क्वायर का एरिया मुझे मिल गया, अभी मुझे एक जो सर्कल है उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ईच सर्कल इज इक्वल टू हाउ मच? पाई r स्क्वायर, और 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, तो ये हो गया 77/2। अच्छा, एक सर्कल का एरिया अगर 77/2 cm स्क्वायर होता है तो 4 सर्कल का एरिया कितना होगा? टोटल एरिया कवर्ड बाय 4 सर्कल इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ईच सर्कल। टोटल एरिया कवर बाय 4 सर्कल, ये 4 सर्कल से जो एरिया कवर है उसका एरिया कितना होगा? 4 इंटू एरिया ऑफ ईच सर्कल इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ ईच सर्कल कितना मिला है? 77/2। तो ये कैंसिल हो गया, ये 154 cm स्क्वायर। अभी ये टोटल एरिया कितना मिला मुझे? 154 cm स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? यहाँ पे लिखता हूँ, नहीं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया कवर बाय सर्कल is equal to 196 minus 54 cm square. This is how we can find out the area of different shapes. So this is how I can find out the area of what? Shaded region. Shaded region का एरिया मुझे कैसे मिला? स्क्वायर का एरिया निकाल दिया, उसके बाद वहां से मैं जो सर्कल है, सर्कल से जो एरिया कवर है उसको मैं माइनस कर दिया, तो मुझे शेडेड रीजन का मिल गया। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप यू
have learned something from these classes and you have some deep knowledge about these concepts. Thank you. Thank you.